अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, we'll begin with the Aqidah lecture. Am I clear and audible? Can one of you just confirm it, please? Yes, very much clear and audible. Okay. In the last session, to the introduction of Tawheed, we did continue with the Taghut, the definition and example. Certain points, as in Tawheed is the reason behind the creation of humans and jinns. Then Allah had sent in every nation a messenger to call them to Tawheed. Tawheed is the first obligation that Allah decreed upon His servants. We spoke about the affirmation and negation in the first pillar itself. Then Allah Azza wa Jal started the orders of the due rights with Tawheed and forbade its contradictory act, with which is shirk. Allah Azza wa Jal and His Prophet ﷺ declared shirk the first forbidden act. And then we concluded with Tawheed is the right of Allah upon His servants. Today, inshallah, we'll go further. We will have virtues of Tawheed. We'll discuss in details more about the virtues of Tawheed. Is there any question from the last section of Tawheed? किसी का अगर कोई भी डाउट है, अगर आप बिगिनिंग में कुछ लेना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो. एंड ऑफ कोर्स आज के इसमें अगर कोई इश्यूज होंगे तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डिस्कस इट इन द एंड. लेट्स स्टार्ट अप. Tawheed grants safety and guidance in this life and hereafter. तो ये बोला जब तुम कॉल करते हो लाइट समझ जाती है. Okay. Tawheed, how does Tawheed grant us safety and guidance in this life and in hereafter? I have a reference here from Surah number 6, verse 82. They, Allah subhanahu wa ta'ala says, they who believe and do not mix their belief with injustice, those will have security and they are rightly guided. So, general meaning of this verse would be, Allah Azza wa Jal informs us that whoever practice Tawheed, यानी अगर कोई भी शख्स, कोई भी मुस्लिम जो तौहीद प्रैक्टिस करता है, is putting tawheed into action without confusing their faith with shirk, यानी पूरी तरह से शिर्क से पाक करते हुए, verily Allah Azza wa Jal के तरफ से क्या प्रॉमिस है फिर? The promise is safety from the fire, जहन्नम से निजात in the hereafter. एंड इस दुनिया के लिए क्या इनामात है कि वो हिदायत और सही रास्ते पे सिरातुल मुस्तकीम पर रहेंगे. सो दीज टू थिंग्स आर, अगर हम इस पे गौर फिक्र करें तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रगल है या हमारी जो अल्टीमेट सक्सेस है, ये इन दो चीज़ों के ऊपर ही मबनी है. एक कि वी आर फाइनली एबल टू गेट रिड ऑफ जहन्नम फॉर गुड. दूसरा ये कि इस दुनिया में हमें कंटिन्यूस हिदायत चाहिए, कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए और हमें सिरातुल मुस्तकीम के ऊपर इस्तिकामत के साथ जमे रहना है. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें किस चीज़ से मिलते हैं? वो है तौहीद. So whosoever dies practicing Tawheed, having turned to Allah Azza wa Jal in repentance from any major sins he may have committed, will be saved from any punishment in the fire. And whoever dies practicing Tawheed, having committed major sins without having repented, will be saved from eternal damnation in the fire, although he may be first punished therein or forgiven as Allah Azza wa Jal wills. अभी यहाँ पर हमारे पास दो सिनारियो है. एक ऐसा बिलीवर जो कि तौहीद प्रैक्टिस करता है, ओके, और उसके खाते में जो हैं वो कुछ मेजर सिंस हैं, गुनाह कबीरा है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह वो जो है जहन्नम की आग से उसको निजात मिल जाती है. दूसरा सिनारियो, ऐसा शख्स जो कि तौहीद प्रैक्टिस करता है लेकिन गुनाह कबीरा में इन्वॉल्व है और वो इस्तग़फ़ार और तौबा भी नहीं करता. तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. एक, बिकॉज वो तौहीद प्रैक्टिस कर रहा है तो फॉर एवर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाली जो है
वो वाली कंडीशन तो उसकी डेफिनेटली बेदनिल्ला नहीं होगी, लेकिन उसके गुनाहों की सजा शायद उसे मिलेगी, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर उसे माफ कर दे तो उसे माफी भी मिल सकती है। तो ये दो सिनारियो उसके साथ हो सकते हैं। तो वी हैव सीन अ बिलीवर प्रैक्टिसिंग तौहीद, बोथ ऑफ देम आर प्रैक्टिसिंग तौहीद। एक के खाते में मेजर सिंस हैं लेकिन उसने माफी तौबा कर दी, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल करके फॉरएवर जहन्नम से उसकी निजात हो गई। दूसरा बिलीवर हु इज प्रैक्टिसिंग तौहीद, उसके खाते में गुनाह कबीरा है, उसने माफी नहीं मांगी, तो हो सकता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको कुछ टाइम के लिए सजा दे, या हो सकता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे माफ करके सीधा जहन्नम से निजात दे के जन्नत में दाखिल करे। The meaning of the verse here, those who believe and do not mix their faith up with any shirk. अब आप ये सोचें कि ये जुल्म जो है, जुल्म, इनजस्टिस, इसको हम लोग जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज शिर्क, प्लेन शिर्क, पोलीथीज्म। एक जो जुल्म है वो हम आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ मामलात में, और तीसरा जो जुल्म है वो अपने ऊपर हम करते हैं। यानी 3 कैटेगरी, वन इज शिर्क जो कि आप अपने रब के साथ करते हैं, एक जो आप आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं मामलात में, और एक जो आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो जो आप शिर्क करते हैं अपने रब के साथ करते हैं, उसका वर्डिक्ट क्या है, उसका डिसीजन क्या आता है, वो अनफॉरगिवेबल है, उसकी माफ़ी नहीं है अनटिल अनलेस आप अपनी ज़िंदगी में ही सच्ची तौबा कर लें और फिर अक़ीदा तौहीद पे बने रहें, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह तो वो माफ़ हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत जिसमें बंदा मुशरिक हो और वो बिना माफ़ी तलब किए अगर फौत हो जाता है, देन इट इज़ अनफॉरगिवेबल। सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है, वो जो हम आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म करते हैं, मामलात हमारे, हुकूकुल इबाद, आई वुड से। आपको इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इसमें यू मस्ट गिव देम देयर राइट सूनर और लेटर। जिस किसी के भी हुकूक आपने अदा नहीं किए हैं या किसी के ऊपर जुल्म या ज्यादती की है, तो जल्द से जल्द पहली फुर्सत में वो मामला आपने सेटल करना है। जिसका हक मारा है उसको हक आपको देना है। जिससे आप माफ़ी तलब करना चाहते हैं उससे जल्द माफ़ी तलब करके अपना अकाउंट सेटल करें। इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, मसलन गीबत, किसी के साथ कोई फ्रॉड करना, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना, किलिंग, इंसल्टिंग, अपनी ज़बान, अपने हाथ, अपने एक्शन से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना, ये सब उसमें शामिल हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ जुल्म जो हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। तीसरा जो हम खुद पे करते हैं, इट इज़ फॉरगिवेबल एंड अंडर द विल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। यानी ये अल्लाह की, प्योरली अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला माफ़ कर दे या फिर अल्लाह ताला उसकी नाउज़ुबिल्लाह सजा दे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लुकिंग एट हराम थिंग्स एंड व्हाट फॉलोज योर डिज़ायर्स, यानी आपकी जो आप नफ्स को जो आप कहते हैं ना सेटिस्फाई करने के पीछे जाते हो। ऐसा है कि जैसे आप सलाह, आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ आप नहीं अदा कर पा रहे हो, आप ज़कात नहीं दे रहे हो, आप अपनी नफ्सों और ख्वाहिशातों के पीछे भाग रहे हो, ड्रिंकिंग अल्कोहल और वाइन, और लुकिंग एट हराम थिंग्स एंड व्हाट फॉलोज दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडर द कैटेगरी ऑफ जुल्म ऑन सेल्फ, आप जो खुद के ऊपर जुल्म करते हो उस कैटेगरी में आएगी। ओके, अभी मैं आपको ना, आई विल गिव यू द वर्सेस, आपने मुझे बताना है कि किस टाइप का जुल्म है। हमने 3 जुल्म की कैटेगरी समझी है ना, जुल्म दैट यू डू विद योर रब, जुल्म जो आप आपस में करते हो, और जुल्म जो आप अपने आप पे करते हो। आई गिव यू द वर्सेस का ट्रांसलेशन, आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाता है। आर यू गाइज रेडी? जिसने अटेम्प्ट करना है वो अनम्यूट करेंगे और रिप्लाई करेंगे। Okay, I'm reading the verse now. Verily, joining others in worship with Allah Azza wa Jal is a great zulm indeed. कौन से टाइप का जुल्म है ये? Yes, Abba. Shirk with Allah. Shirk with Allah. With Allah. Very good. Barakallah fir. Okay, very nice. Second, and whoever, जिसने बोल दिया है फिर वो दूसरों को चांस दे, हाँ? And whoever does evil or wrongs himself, but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft forgiving, most merciful. ये किस टाइप का जुल्म है? Yes, Amina.
जो हम आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म करते हैं, हकूक अदा करना और अपने नफ्स को और अपनी जुबान के साथ और एक्शन के साथ दूसरों को तकलीफ देना। I am afraid that's wrong. That's wrong. कोई और अटेम्प्ट करे? यस शाजिया, शाजिया मुदस्सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी ये तीसरे टाइप का होता है ना, ये अपने आप पर जो जुल्म करते हैं, एग्जैक्टली, ये खुद अपने आप पर। जुल्म ऑन सेल्फ है, ये जुल्म ऑन On सेल्फ है। self. I will repeat the verse again. I think for Samina you didn't get it. And whoever does evil or wrongs himself आया है ना, तो ये जुल्म ऑन सेल्फ हो गया। Okay, I'm going for the third one. My servants I have made oppression unlawful for me and unlawful for you. So do not commit oppression against one another. ये कौन से टाइप का है? थर्ड। Wrong. Why are you so confused? Who said third? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे ना एक बार कॉल आती है मेरे टेलीफोन पे आ रही, जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैंने सुना नहीं है। ओके, बट आप गौर से सुने, और अगर सुनेंगे जब आप आंसर देना चाह रही हो तो यू शुड बी श्योर, यानी बिकॉज आपके जवाब की वजह से फिर दूसरे कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए ना। ओके, आई रिपीट अगेन। माय सर्वेंट्स आई हैव मेड ऑपरेशन अनलॉफुल फॉर मी एंड अनलॉफुल फॉर यू, सो डू नॉट कमिट ऑपरेशन अगेंस्ट वन अनदर। Samira, I think you reply. Yeah, Rakhi, Aisha, yeah, you reply. One of you please reply. मैंने बोला अच्छा चुना। सेकंड वाला, Second, what is the second? आप नाम दीजिए उसको। एक दूसरों के साथ। Okay, it is जुल्म doing zulm against one another, एक दूसरों के साथ। One another. That's correct. जी, जी. Okay, alhamdulillah, you can guys mute yourself now. तो ये हमें समझ आ गया है कि जुल्म की तीन कैटेगरी और किस तरीके से। वन इज विद रब, जो कि प्योरली शिर्क है। दूसरा हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसकी एग्जाम्पल स्टीलिंग, बैक बाइटिंग, किलिंग, इंसल्टिंग, अपने हाथ और अपने जबानों से एक दूसरे मुसलमान बिलीवर को हर्ट करना। तीसरा हम अपने ऊपर जो जुल्म करते हैं, जो गुनाहें हम करते हैं और जिस तरीके से हम सिनिंग करते हैं और डिसओबीडियंस वाले एक्ट्स करते हैं, दैट विल ऑल गो अगेंस्ट जुल्म अगेंस्ट सेल्फ। ठीक है, ये तीन कैटेगरी बिल्कुल क्लियर हो गई है। So what are the key points and principles here? The definition of iman, the meaning of zulm, and the three sections of zulm and their verdicts, and the meaning of safety on the day of judgment. अब ईमान जो है हमें सबको पता है, हर बार सुनते हैं, हर बार समझते हैं, और उसको वन सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन। Okay, sorry. So iman जो है, belief in the language means at-tasdiqul jazim, definite affirmation which is accompanied by faith and not affected by doubt. तो यानी हम लोग एक चीज को लेकर चल रहे हैं कि जब हम अकीदा तौहीद के बारे में बात कर रहे हैं, एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉरवर्ड अबाउट इट, तब हमारे अंदर एक अफर्मेशन और सर्टेनिटी है। हम डाउट्स और किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी पे नहीं है। इसीलिए अकीदा तौहीद का जो रूट्स स्ट्रॉन्ग होती है, तब जाके आपकी बिल्डिंग जो है ऊपर उसके जो बिल्ट होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ योर फेथ बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन फर्म अफर्मेशन एंड निगेशन। आपने दूसरी चीजों को निगेट कर दिया है, आपने अपना फर्म बिलीफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे रख लिया है, एंड दैट इज हाउ यू प्रोसीड. So as for iman in the legislation, then it is belief of the heart and expression upon the tongue and action upon the limbs. ये हमने पहले वाले सेशंस में भी डिस्कस किया है कि it is not just एक एंगल नहीं है, इसके अंदर सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी। मसलन आपके दिल का मामला, what is in your heart, which is a hidden factor, वो एक डायरेक्शन में है। उसके बाद
सिमिलर लाइंस पे कलिमात आपके जबान पे जारी है, विच इज एक्सप्रेशन अपॉन योर टंग, एंड उसी को फॉलो करते हुए आपके एक्शन अपॉन द लिम्स चल रहे हैं. सो एवरीथिंग इज इन वन लाइन. ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में इसकी भी अकीदत है, उसकी भी अकीदत है, पर जबान पे मेरे कुछ और जारी है और मेरे एक्शंस कुछ और कर रहे हैं. इट विल नॉट बी बैलेंस्ड. इट हैज टू बी बैलेंस्ड व्हेन एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अकीदा तौहीद के ही वन ट्रैक पे मेरा जब मामला चल रहा है, दैट इज वेयर माई स्टेप्स विल बी वेरी फर्म एंड दैट मेक्स द बेस ऑफ माई ईमान. और ये बढ़ता है ओबीडियंस से और ये घटता है डिसओबीडियंस से. सो बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका. हाउ कैन आई इंक्रीज इट? हाउ कैन आई इंक्रीज माई ईमान और हाउ कैन आई इंक्रीज माई फेथ? हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ मोर फर्मर इन माई अकीदा तौहीद? जितनी ज्यादा मैंने ओबीडियंस करी उतनी ज्यादा उसकी जो पावर है इंशाल्लाह वो इंक्रीज होगी और उतना ज्यादा फर्मनेस आएगा, उतनी ज्यादा मेरी रूट्स जो है वो मजबूत होगी. So you have to combine your heart, tongue, and limbs in the same direction with certainty. Now, what could be the definition of zulm? Injustice, zulm originally means a violation of rights and to put something in the wrong place. यानी अगर हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, what exactly do we mean by injustice? तो वायोलेशन ऑफ अ राइट, किसी का भी जो एक हक है अगर आप वो अदा नहीं करते हो, ओके, और एक चीज को गलत जगह पर रखते हो, दैट विल फॉल अंडर जुल्म. Shirk is thus the greatest injustice because it takes the right of Allah Azza wa Jal to be worshipped alone and gives to his creation. यानी अब खालिक है, खालिक जो है, मालिक जो है, हमारा मुदब्बिर जो है, we have to give his due rights. अल्लाह के साथ शिर्क ना करना ये अल्लाह का हक है. इट इज हिज राइट अपॉन हिज स्लेव्स. अगर आप वो हक किसी और को, अल्लाह की क्रिएशन को दोगे तो आप जुल्म कर रहे हो. अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. और ये जो है हम लोगों ने इबादत के भी अकसाम समझने की कोशिश की है प्रीवियस सेशन में. वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इबादा, नॉट जस्ट वन ट्रैक बट बहुत सारी टाइप्स ऑफ इबादा जिसको हम सोचते हैं कि हम इंसानों के तरफ उसको डायरेक्ट करेंगे, बट एक्चुअली स्पीकिंग इट इज़ द राइट ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो हम लोग जो हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली, इग्नोरेंटली बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं विच माइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ शिर्क. तो इसीलिए इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है. और if by mistake or unintentionally or being unaware or due to ignorance आप कर रहे हो, that will not fall as a justification. क्योंकि हमारे ऊपर नॉलेज गेन करना, ये नॉलेज गेन करना ऑब्लिगेटरी मैटर है, तो that will not be justified कि हम कहें कि we were not aware of it. Even though I accept that कि ठीक है, अगर ला इल्मी में आपसे गलती हो गई हो, अल्लाह गफूर रहीम है, मगर that justification cannot go for a long period of time. क्योंकि आपका ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बनती है कि आप इस चीज की इल्म हासिल करें. And that's why shirk is considered as the greatest injustice. What is the meaning of zulm here? When the words "those who believe and mix not their belief with wrong" was revealed, the Muslims felt it very difficult on them and said, "O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who amongst us did not do wrong to himself?" He replied, "The verse does not mean this, but that wrong means to associate others in worship with Allah." अब जब ये वर्स नाजिल हुई तो मुस्लिम्स जो थे सहाबाज, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे ऊपर. फिर उन्होंने कहा कि ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों में से कौन है जिसने हम अपने ऊपर जुल्म इस तरीके से नहीं किया हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिफाई किया कि ये वर्स का जो मानी है वो ये है कि आप अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट ना करें. बाय डूइंग रॉन्ग, दैट रॉन्ग इज डूइंग शिर्क. Didn't you hear what Luqman said to his son when he was advising him? फिर उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया कि क्या आपने ये नहीं सुना कि लुकमान ने अपने बेटे को क्या सलाह दी थी? ओ माय सन, join not others in worship with Allah. Verily, joining others in worship with Allah is a great wrong indeed. तो ये जो wrong word है, ये किस चीज से एसोसिएट किया जा रहा है? Purely with shirk.
तो शिर्क जो है, बार बार देखें आप, जैसे कि अभी कुरान की ही आयत है कि you don't have to, the advice that he's giving to his son Luqman alayhi salam, what he's giving advice to his son कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, क्योंकि ये जो शिर्क वाला जो फैक्टर है ये रॉन्ग, ग्रेट रॉन्ग है, ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे गलत चीज है। तो इसके अंदर हम लोग जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई वेरिएशंस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। एंड दिस इज फ्रॉम सही बुखारी 3429 hadith. Another reference from Al-Bukhari, it is reported on the authority of Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu that he said, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, whoever testifies that none is worthy of worship except Allah Azza wa Jal alone, without partners, and that Muhammad is his slave and messenger sallallahu alaihi wasallam, and that Isa alayhi salam is his slave and messenger, and his word which was bestowed upon Maryam and a spirit created from him, and that paradise and hell are realities, Allah Azza wa Jal will admit him to paradise, whatever his deeds might be. अब second point is, Tawheed is the key to paradise. एक तो हमने समझ लिया कि अल्लाह ताला जो हमें आखिरा में राहत देते, सेफ्टी देते हैं, और इस दुनिया में हिदायत और गाइडेंस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है तौहीद इज द की टू पैराडाइज। अब जब जहन्नम से निजात हो रही है तो द सेकेंड पार्ट ऑफ इट वुड बी व्हाट, दुखूल इन जन्नह, जन्नत में एंट्री। तो तौहीद इज द चाबी, तौहीद इज द की टू पैराडाइज। एंड एज पर दिस हदीथ, अगर हम अभी इसका खुलासा करें, सो व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ दिस हदीथ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तौहीद के मेरिट्स क्या है, उसके फवाइद क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मुस्लिम के लिए। उन्होंने कहा जो कोई भी ये टेस्टिफाई करे, शहादा करे अपने ईमान का, उसके मानी को समझते हुए उस पे अमल करे, इनवर्डली एंड आउटवर्डली, यानी अपैरेंट एंड हिडन, और जो है ना हद से ज्यादा तजावुज करना बंद करे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल लेकर के उनको ज्यादा एहतराम और हद से ज्यादा उनको उनकी डेजिग्नेशन से आप अपग्रेड करें कि उनको मखलूक से लेते हुए फिर खालिक तक पहुंचा दे, या वो सारी सिफत जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं वो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डायरेक्ट करें। सिमिलरली ईसा अलैहि सलाम के साथ भी कि भाई वो जो हैं लाइक हाउ नसारा जो हैं वो लोग डेविएट किस तरीके से हो गए, उसी तरीके से हो गए बिकॉज दे अपग्रेडेड द स्टेटस ऑफ अ मैसेंजर टू द लेवल ऑफ द क्रिएटर। तो वो गलती होने की वजह से दे आर डेविएटेड। सो उतना हमने लेकर नहीं जाना है अपने नबी और अपने रसूल का स्टेटस कि हम शिर्क के लेवल में पहुंच जाएं। This is the main reason why. This is the main reason why they have been considered as the deviated sect. One second, please. Guys, just give me 2 minutes. There is an emergency. Just give me 2 minutes, please. So, please, आप लोग mic mute. 1 second, guys. 1 second. I'm getting some calls. Hold on. So, the general meaning is that whoever is proclaiming the testification of faith, उसके माने को अच्छी तरह से समझते हुए, inwardly and outwardly, exaggeration towards the messenger ना करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके लिए क्या फायदे हैं? जन्नत की गारंटी विच इज लाइक अ की टू द पैराडाइज, और जहन्नम से हमेशा से निजात, और वो जन्नत में लाजमी दाखिल किए जाएंगे भले उन्होंने सिंस किए हों। क्योंकि हमने 2 सिनेरियो देखे, हो सकता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर दे, या फिर कुछ टाइम के लिए उनको सजा दी जाए, लेकिन फॉर एवर रहने वाली जो जहन्नम में रहने वाली जो कंडीशन है उससे फॉर श्योर आपकी निजात हो जाती है। सो द टेस्टिमनी ऑफ फेथ इज व्हाट? टेस्टिमनी मस्ट बी प्रिसीडेड विद नॉलेज। ये हमने
पहले भी जब हम लोग इल्म की अक़साम पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने जाना था कि टेस्टिमनी जो है, जो शहादा है, जो दिल का, जो आपकी ज़बान का, जो आपकी एक्शंस का मामला है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द नॉलेज। यानी पहले आपको उस चीज़ का इल्म होगा, फिर आप उसको परफॉर्म करेंगे। ये बात आप जहन में रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे चिकन करी बनानी है तो मुझे बिना नॉलेज के मैं नहीं बना सकती। आई शुड नो द मेथोडोलॉजी। जब तक कि मुझे मेथोडोलॉजी नहीं आएगी मैं उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं बिना नॉलेज के किसी चीज को अटेम्प्ट करती हूँ तो मे बी आई विल डू इट रॉन्ग, आई विल मेस इट अप, आई विल नॉट डू इट इन द राइट प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो नॉलेज हैज टू प्रीसीड बिफोर द एक्शन। तो अगेन इट इज अ रिमाइंडर फॉर अस कि ये नॉलेज की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है ना छोटी छोटी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इटर्निटी, वी आर टॉकिंग अबाउट आखिरा, वी आर टॉकिंग अबाउट जन्नत एंड जहन्नम। तो ये हम हमेशा की जो जिंदगी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ अगर विदाउट नॉलेज हम करते हैं तो वो एज आई सेड it's not going to be correct, it's going to be messy, it's going to be not definite। उसमें बहुत सारे डाउट्स होंगे, उसमें सर्टेनिटी नहीं होगी, उसमें अफर्मेशन नहीं होगा, और वो गारंटी हमको जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल सकती। So it is not enough to say it without knowing its meaning, and it is not enough to say it knowing its meaning without acting according to it। फिर जाकर जो बात आ रही है वो उस पर आ रही है, आपके पास नॉलेज आ गई, फिर आप क्या कर रहे हो? वो नॉलेज लेकर आप सिर्फ अपने तक महदूद रख रहे हो या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो? तो नॉलेज के बाद इमीडिएटली कौन सा सेकेंड पार्ट आता है? एक्टिंग अपॉन इट। तो नॉलेज and acting upon it in the right manner and then claiming your reward, it follows। ये उसकी chronological order बन जाती है। The Arab pagans who worshipped idols refused to say this word and refused its meaning, while the modern mushrik who claim to be Muslim while exaggerating the status of awliya agree to say it with their tongue but refuse to abide by its meaning। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास दो कैटेगरी मौजूद हैं। एक वो जो पुराने अरब्स जो अपने अपने मुशरिक यानी अपने आइडल्स को जो वर्शिप किया करते थे, वो लोग जो हैं वो रिफ्यूज ही करते थे, यानी वो फेस ऑफ डायरेक्टली रिफ्यूज करते थे कि हमें ये अपने माबूदों को छोड़ना है और सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद बनाना है। ओपन, वेरी सिंपल इग्नोरेंट। लेकिन आज के जो मुशरिक सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं? वो औलिया को, ओके, वो वली अल्लाह को, वो किसी पायस पर्सन को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं कि वो अपनी जबान से जो है ना, वो तो दिख रहा है कि वो यानी मुस्लिम्स हैं और अल्लाह में बिलीव रख रहे हैं, लेकिन उनके दिल का जो मामला है उसमें शिर्क मौजूद है। तो दैट इज द रीजन इसमें मिलावट है, अकीदे में मिलावट है, और वो चीज जो है वो है द ग्रेट रॉन्ग, वो चीज जो है वो बनता है शिर्क। सो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम राइट नॉलेज गेन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने हार्ट्स, अपने टंग्स और अपने लिम्स को एक डायरेक्शन में शिर्क से पाक करते हुए आगे बढ़ें। सो Allah will admit him into paradise whatever his deeds may be। कैसे मुस्लिम जन्नत में दाखिल किए जाएंगे? दो कैटेगरी, अगेन इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस कि एक तो डायरेक्टली जिन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल कर दिए विदाउट एनी प्रायर पनिशमेंट इन द हेल फायर, जिसके अंदर दिल में तौहीद है और उनके अच्छे अमाल जो हैं उनके गुनाहों से ज्यादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत। सेकेंड कैटेगरी, जिनको थोड़ी सी पनिशमेंट जहन्नम में दी जाएगी बिकॉज ऑफ देयर गुनाह, उनके पास तौहीद है लेकिन उनके गुनाह जो हैं वो उनके नेक अमल से ज्यादा हैं और उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और शायद उनकी माफी कबूल नहीं हुई। इस पे अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला कुछ टाइम के लिए उनको जहन्नम में सजा देकर फिर जन्नत में दाखिल करे, या फिर अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करके उनको जन्नत में दाखिल कर दे। क्लियर एंड इजी, एंड दैट इज closing our second point, which is Tawheed is the key to paradise. Number 3, Tawheed
saves from hellfire. Again, when I say there is darkness, तो आप समझ जाएंगे कि दूसरा उसका पार्ट क्या है कि if there is darkness, there is absence of light, which means जब आपकी एंट्री जन्नत में हो जाती है तो आपकी बचत हो जाती है जहन्नम से. उसके बारे में we'll understand how tawheed is going to reflect or is going to help us to save us from the hellfire. Because बार बार जब मैं आपसे कह रही हूँ कि तौहीद जो है वो आपकी प्रोटेक्शन है, तौहीद जो है वो आपकी जहन्नम से निजात है, तौहीद जो है वो आपकी सिक्योरिटी है इस दुनिया में, हिदायत के लिए आपका एक क्लियर रास्ता बन रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेनिफिट्स या इसके फ़वाइद या वर्च्यूज़ जो हैं, ये सिर्फ एक ही फैक्टर के हैं और वो है तौहीद. Tawheed saves from hellfire. Idban radiallahu anhu reported that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, Allah Azza wa Jal has forbidden from hell the person who testifies that none is worthy of worship except Allah Azza wa Jal, seeking nothing by it but Allah's countenance." ये al-Bukhari और Muslim की हदीस है. So what is the general meaning of this hadith? ये हदीस हमको क्या इन्फॉर्म करती है कि Allah Azza wa Jal will save from the punishment of the hellfire all those who confirm his oneness and act in accordance with that. यानी वो सारे लोगों को जहन्नम की आग से निजात है जो अकीदा तौहीद को कंफर्म करते हैं और वो कंफर्म करते हुए उस पे अमल करते हैं. और उनकी नियत क्या होती है? उनका जो नियत होती है वो सिर्फ अल्लाह को प्लीज करने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करीब जाने के लिए, रियाकारी नहीं. रियाकारी इज अगेन वन ऑफ द खफी शिर्क. तो रियाकारी नहीं और ना ही सुमा कि हमारी अच्छा नाम हो जाए, हमारी रेपुटेशन हो जाए. सो रिया इज शो ऑफ एंड सुमा इज सीकिंग गुड रेपुटेशन. तो अभी हमने इसकी 3 यानी आई वुडंट से कंडीशन बट इसके बारे में 3 पॉइंट्स हमें समझना है अबाउट दिस हदीथ एंड हाउ तौहीद इज सेविंग फ्रॉम हेलफायर. नंबर 1 इज कीपिंग the idea of Aqidah Tawheed, which is belief in the oneness of Allah Azza wa Jal. Number 1. Number 2, हमारी एक्शन जो है वो इसके ऊपर मबनी होनी चाहिए, अकीदा और तौहीद के ऊपर. अकीदा तौहीद के ऊपर हमारे एक्शंस और हमारे डीड्स ऑफ आवर actions of our limbs, the words from our tongue and the matters of our heart, सब चीजें जो हैं इस चीज पर बेस्ड होनी चाहिए, विच इज अकीदा तौहीद. नंबर 3, हमारी इंटेंशंस. आपको पता है हर चीजें जो है इंटेंशन बेस्ड है, राइट? तो इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए? अब आप देखें कई बार हम लोग इसको वी माइट वांट टू प्रोजेक्ट या हम एक फेक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दिलों के हाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल जानते हैं. तो क्या हमारा एक्शन, क्या हमारे कलेमात, क्या हमारी नीयत लोगों को प्लीज करने के लिए है, शो ऑफ के लिए है, रिया के लिए है, या सुमा के लिए है कि हमारी इमेज अच्छी हो जाए, लोगों में हमारी रेपुटेशन बन जाए? ये सारे मामलात हिडन है. तो ये चीज भी मद्देनजर रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑल दिस 3 फैक्टर्स हैज टू बी ओनली एंड ओनली for seeking the pleasure of Allah Azza wa Jal, only to seek the closeness of Allah Azza wa Jal and claiming the oneness of Allah Azza wa Jal. इसके benefits क्या होंगे? Words and deeds are of no value without the intention of getting closer to Allah Azza wa Jal. अगर आपकी नियत में खोट है या फेर है तो उसका, वो वर्ड्स का, वो डीड्स का, वो एक्शन का कोई फायदा नहीं. इट इज एज इफ कि एक बकेट है, उसमें लीक है और आप उसमें पानी भरते जा रहे हो, वो कुछ जमा नहीं हो रहा है अनलेस यू टाई इट अप एंड क्लोज द लूप होल. आपकी नियत आपने एक तरफ उसको डायरेक्ट करना है, वो है टू गेट क्लोजर टू अल्लाह अज़्ज़ा व जल. Number 2, the mere utterance of the testimony of faith by those who adore other false deities or objects besides Allah Azza wa Jal, such as devotees of shrine, is of no avail. अब अगेन अफर्मेशन एंड निगेशन की बात हो रही है कि मैं बोलने के लिए तो हाँ मैं बिल्कुल नमाजें मेरी जारी है, ज़कात चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं, और फिर मैं उधर किसी मकबरे पे नौज़बिल्ला जा रही हूँ और उधर मन्नत मांग रही हूँ और उधर गैरुल्लाह की कुर्बानी कर रही हूँ. नो, इट विल नॉट वर्क. It cannot happen. यानी there are no gray shades in Islam. Either there is black or there is white. हम इसको मिक्स नहीं कर सकते. और ये मामला जो है ये दिल का मामला है, ये मामला जो है इसी के ऊपर बेस है हमारी रिलीजन की
ला इलाहा, फर्स्ट कम्स द निगेशन, देन कम्स द अफर्मेशन। तो पहले मुझे दूसरों को रिजेक्ट करना लाजमी है, हर माबूद को, हर शय को, हर एंटिटी को रिजेक्ट करना है। जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसको मुझे रिजेक्ट करना है और सिर्फ अल्लाह को तरजीह देनी है। अल्लाह का स्टेटस मुझे आइडेंटिफाई करना है, तब जाके वो मामला सेट होगा। Though they verbally proclaim the testimony of faith, yet they invoke the dead and seek to draw nearer to them. यानी जबान से कलिमात जो हमारे निकल रहे हैं, जी बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह चल रहा है, लेकिन दिल से नहीं हो रहा है। वो जो एक्शन है हमारे, वो हमारी हार्ट के मैटर के साथ मैच नहीं कर रहा है। और इसलिए मैं आपसे बार बार वो ट्राइंगल की बात करती हूँ कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस मैच करने चाहिए और वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए अकीदा तौहीद के। अगर वर्ड्स कहीं जा रहे हैं, एक्शन कहीं जा रहे हैं और थॉट्स कहीं जा रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। इट हैज़ टू बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अकीदा तौहीद। एंड फर्दर टू इट, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमें ना रिया ना सुमा, किसके लिए? अल्लाह की रग़बत, अल्लाह की हमको प्लेजर हासिल करना है। दैट शुड बी अवर इंटेंशन। एंड ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन द sound knowledge from Quran and authentic Sunnah. This hadith proves that Almighty Allah has a face that suits His majesty and might. यानी अल्लाह ताला का जो है ना, यानी वजह जो हम, not in terms of humanly form of course, but जो अल्लाह ताला की अजमत है, जो अल्लाह ताला डिजर्व करते हैं, जो अल्लाह ताला का हुकूक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। Under any circumstances, we cannot compromise on that at all. So shahada must be with knowledge. Shahada must be with knowledge. Whoever testifies the testimony of faith must know and accept what he's saying with his tongue. Allah Azza wa Jal said, interpretation of the meaning, यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, सूरा नंबर 43 वर्स 86। Except those who bear witness to the truth, that is, believed in the oneness of Allah Azza wa Jal and obeyed His orders, and they know the facts about the oneness of Allah Azza wa Jal. यानी आप जो है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे शहादा, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखा दिया, बाय हार्ट करा दिया कारी साहब ने, तो आप कह रहे हैं। जब आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल लेवल आती है, when you start thinking, when you start reasoning, you have to have a very firm faith on it. हो सकता है गफलत में, लाइल्मी में हमने किया हो, मैं अल्लाह फॉरगिव ऑल ऑफ अस या रब, बट जैसे ही आपके पास अकीदा तौहीद की चाबी आती है, फिर आपके दिल का मामला क्या है? नाउ इफ आई मे आस्क यू, आज अभी इस वक्त आपके दिल का मामला क्या है? कैसा है आपका बिलीफ ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल? वेयर डू यू प्लेस अल्लाह अज़्ज़ा वजल? क्या आप अभी भी अपनी वो दौर जहलियत की मनगढ़ंत चीज़ों के ऊपर बिलीव करेंगे, या आप अकीदा तौहीद को लेकर आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन और इबादत को लेकर चलेंगे? आपको रोज़ अपने आप को टटोलना है, अपने दिलों को, अपने डीड्स को, अपने कलिमात को किसी भी तरह की शिर्क से पाक करना है। और सुब्हानअल्लाह, देयर आर मेनी दुआ इन मसनून अस्कार, बहुत सारी दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। इंशाल्लाह विल ट्राई टू शेयर इट इन द ग्रुप, कि हम अपने आप को फर्म रखें, अपने आप पे एक इस्तिकामत के साथ हम चलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यही हमारा बेस है रिलीजन का। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें ना कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है और हमारी इबादतों को, हमारे कलिमात को, हमारी सोच को, हमारी नियतों को हर किस्म के शिर्क से पाक करना है। There are 7 conditions of the testimony of faith. ये हम लोगों को अभी धीरे धीरे समझना है कि what is it. अब जब ये थर्ड पॉइंट में हम कह रहे हैं कि जो हमेशा की जो जिंदगी जहन्नम में रहने वाली है, उससे प्रोटेक्शन मिलती है तौहीद से। So what do I exactly mean by forbidding hellfire? Again, there are 2 things that has to be understood here. Allah Azza wa Jal has forbidden from hell the person who testifies that none is worthy of worship except Allah. अब उस पे जहन्नम जो है वो हराम कर दी गई है उस इंसान पे जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान हो और अकीदा तौहीद हो। तो फुल्ली नॉट एंटरिंग इट एक है जिसके हमने डिस्कस किया अकीदा तौहीद है, और उसके जो गुनाह है वो उसकी नेकियों से थोड़े हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इजी। दूसरा जो है जिसके पास तौहीद है बट कुछ सिंस है और वो सिंस जो है वो अल्लाह के डिसीजन पे डिपेंड करता है, तो अगेन इट्स द सेम रिपीटेशन कि व्हेन वी से इन द सेकंड पॉइंट के एंट्रेंस टू जन्नत वही दो कंडीशंस थी। अब जब हम कह रहे हैं कि आग उस पे हराम है तो अगेन द सेम कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिया? रिया मीन्स शो ऑफ। शो ऑफ यानी मैं अगर कोई नेकी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग अ चैरिटी, तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरी सेल्फी आए, फोटो आए, छपे नाम के साथ एंड ऑल दैट। एनी गुड डीड दैट यू डू टू शो ऑफ, लोगों के अंदर अपना दिखाने के लिए जब आप कोई नेकियां करते हैं, दैट गोज अंडर रिया। पॉइंट नंबर 4, द 7 कंडीशंस जो है ना, इंशाल्लाह मैं उसको और डिटेल में लूंगी आपके साथ। द टेस्टिमनी ऑफ फेथ की 7 कंडीशंस है, इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल। आज मुझे जो है ना ये वर्च्यूज कंप्लीट करना है, ठीक है। सो वी आर ऑन पॉइंट नंबर 4 नाउ। तौहीद इज द मोस्ट हैवी इन द स्केल। आपको पता है मीजान जो है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा भारी चीजें क्या होंगी? अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल एंड बैलेंस एंड वेट है ना, फिजिक्स बेस्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द मीजान दैट अल्लाह अज़्ज़ा वजल विल बी प्लेसिंग इट इन यौमुल आखिरा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत वजनी होंगी यौमुल आखिरा में मीजान पे, जिसमें से एक डेफिनेटली तौहीद है। ओके, देयर इज आल्सो वन मोर, इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों के पास, यानी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज एज वेल, कि कौन से ऐसे कलिमात हैं जो मीजान पे हैवी हैं। इफ यू गाइज नो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। देयर आर चंद कलिमात, चंद जिक्र अस्कार जो कि मीजान पे बहुत भारी हैं। यस अबा? सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। बारकल्लाह फीक, वेरी गुड। और भी, और जो पता हो आपको कोई और? इशरत जी बताएं। ला इलाहा इल्ला। बारकल्लाह फीक, वेरी गुड, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। और भी हैं, बताएं महा। यस महा, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। I'm नो sorry. प्रॉब्लम। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्ला। नहीं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ओके, आई गॉट इट। बारकल्लाह फीकुम। यस, बारकल्लाह फीकुम गर्ल्स। म्यूट योरसेल्फ प्लीज। तो ये चंद कलिमात के बारे में हमें पता है, अस्कार्स हैं जो कि बहुत हैवी है मीजान पे, ठीक है। सो आई एम कोटिंग अ हदीथ हियर. It is reported on the authority of Abu Sa'id al-Khudri from the Messenger of Allah Azza wa Jal that he said, Musa said, O Rabb, teach me something by which I may remember you and supplicate you. Allah Azza wa Jal said, say, O Musa, la ilaha illallah. Musa said, O Rabb, all of your slaves say that. Allah Azza wa Jal said, O Musa, even were the 7 heavens and all that they contain other than me, and the 7 earths as well, all put in one side of a scale, and la ilaha illallah put in the other, the latter would outweigh them. अभी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहि सलाम रब के पास आए और उनसे कहा कि मुझे कुछ सिखाएं कलिमात ऐसे जिससे कि मैं आपको याद करूं, आपकी दुआ करूं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ये तो आपके सारे जो हैं स्लेव्स जो हैं वो करते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक्सप्लेन किया कि ओ मूसा, अगर 7 जन्नत और जो उसमें कंटेन करते हैं और 7 ज़मीन और जो उसमें कंटेन करते हैं वो एक तरफ रखा जाए एक पड़ले में, और दूसरे पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन जो है वो भारी होगा। जी महा बोले। यस महा, यू हैव समथिंग टू टॉक और यू हैव फॉरगॉटन टू लोअर योर हैंड? ऑलराइट, सो इसकी जनरल मीनिंग क्या हुआ? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को एक फॉर्मूला पूछा, किस तरीके से मैं आपको याद कर सकूं, आपकी हम्द सना कर सकूं, दुआ कर सकूं। तो उनको क्या बताया गया? व्हाट इज, अभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज डायरेक्टली गिविंग द की, यानी ये फॉर्मूला देखिए आप, किसी के थ्रू से कोई वाया वाया या कहीं से नहीं आ रहा है, ये मैन मेड नहीं है, ये द क्रिएटर हिमसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट इट। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि ये कंफर्म शॉर्टकट है हमारे लिए। ये कलिमात अगर हम रोज पढ़ें और इसको, ये कलिमात हमारी जुबान पे जारी रहे और ये कलिमात पे हमारा पूरा पूरा यकीन हो, दिल से पढ़ें, तो आप देखें इसके फायदे कितने। सुभान अल्लाह। Thus he was recommended to repeat the statement La ilaha illallah, negation, affirmation, कोई और नहीं सिवाय अल्लाह के। Moses realized that this statement is often reiterated by most people.
Therefore, he asked for a special invocation so that he might be distinguished. Allah explained to him the virtue of this statement, which is unmatched by other statement. यानी इतने खूबसूरत कलिमात, इतने ब्यूटीफुल लफ्ज जो कि इतने भारी हैं मिजान पे, इसके फायदे ही फायदे, यानी इसको बोलना, इस पे यकीन रखना, इसके बेस्ड अपने एक्शंस को अरेंज करना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारती है. तो अगर आप लोगों में से जो इस चीज के ऊपर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो आज से इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे कि ये इसकी तस्बीह करना शुरू करें. जस्ट से 100 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 100 टाइम्स इन द, एक्चुअली मॉर्निंग इवनिंग के जिक्र अस्कार में इंक्लूडेड है. तो आप लोग इस चीज को अगर आप नहीं करते हैं तो शुरू कर दें. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की भी तस्बीह शुरू कर दें. सी एवरी क्लास, एवरी सेशन, एवरी लर्निंग जो है ना, वो हमारे अमल में कुछ ना कुछ बेहतरी चेंजेस लाने चाहिए. तो इंशाल्लाह तब जाके फायदा होता है. हमने सुना, सुन के हम सो गए नहीं, हमें उस पर अमल करना है, अपने आप को बेटर करना है, इम्प्रोवाइज करना है. तब जाके हम कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा, हमने अपनी इस्लाह की, आज का हमारा दिन जो है वो कल के दिन से बेहतर हुआ. तो देयर हैज टू बी अ प्रोग्रेस, इवन इफ इट्स अ मार्जिनल प्रोग्रेस, लेकिन उसको आप मुसलसल लेकर चलें. डू इट बोलते ना डेली प्रैक्टिस. देन आज किया कल भूल गए वाला नहीं, इसको भी इंक्लूड कर लें. तो आप मॉर्निंग इवनिंग में ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करें, उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही की तस्बीह करें, उसके बाद सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की तस्बीह करें, दुरूद की तस्बीह इंक्लूड करें. एंड बिलीव मी, इट डज नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डाले या रब, सेहत दे हमें सबको. लेकिन हमें ये इंक्लूड करना है क्योंकि इसके फायदे अनगिनत हैं, बहुत इनफाइनाइट फायदे हैं इसके. तो इंशाल्लाह. यस माहा, डू यू हैव समथिंग? यू आर रेजिंग योर हैंड. Yeah, I want to say Subhana bihamdihi wa adada khalqihi wa nafsihi zinata arshihi midada kalimatihi. This is like, I heard a hadith in which one of the Mu'mineen was doing adhkar for the, like when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam left the house, she started doing adhkar, and then when he returned after a few hours, she was still doing adhkar, and he said, I don't remember the name of the Mu'mineen, but he said that, you're just doing something that I would do, like, by reciting this. Like, you took all this, all this time to do Yes. adhkar, but this is like the best adhkar you can do. Maha, what you're talking about is there is a hadith. Of course, I'm seconding you, but this is a part of the morning zikr. We say it thrice in the morning and thrice in the evening, actually. And then what you're Yes. saying, of course, I'm affirming. But the azkar that I was referring to, the one which is heavy on the scale, on the mizan. So in that there was the Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil Azimi. This azkar that you are saying is a part of the azkar of Sabah, and of course Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that you have been doing your zikr azkar for so long. If you would just say thrice this, it would suffice. Absolutely correct. Barakallah Yes. feek. Yeah. Yeah, and I also do that adhkar. Alhamdulillah. Barakah. May Allah accept it. And agar jo nahi karte, the ones who are not doing it, it's a reminder for them. And those who are doing it, feel good about it, increase it further. That's what I would say. But we have to take care of all this because again and again, we are affirming our faith. See, saying something just without conviction and saying something with conviction, there is a lot of difference between the two. So again and again, we have to make our faith stronger. हमें अकीदा तौहीद, every time you say it, you feel it from your heart. और जब वो focus and concentration के साथ आती है ना जब आपकी बात, then you really feel the beauty of it. You feel the tranquility of it. So लाजिम है कि आपको अपने दिल से affirm करते जाना है. लुबना, you have to say something. लुबना, आपने कुछ ऐड करना है? जी वो नाम बताना चाह रही थी मैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया थी वो. अच्छा, मैंने कहा मैं याद करवा दूं. हाँ जी, चलो सही. हज़रत जुवैरिया के बारे में बात हो रही थी. जज़ाकिल्लाह खैर. So और जन्नत के एक खजाने में से एक खजाना ला हौल वला को, मतलब वो जन्नत का खजाना भी ला हौल वला को तो इल्ला बिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कलिमात हैं, लेकिन अगेन आई रिपीट,
कि आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि ये क्या है, इसकी मानी क्या है, व्हाट इज द अफर्मेशन, व्हाट इज द निगेशन, तब जाके हमें पता चलता है लाइक कि जो हमारे अंदर से कन्विक्शन और सर्टेनिटी आनी है, that is very very important, and that is what I'm trying to say. So what are the lessons that we learn from this hadith? The hadith points out the great virtues of proclaiming that there is no God but Allah Azza wa Jal. Acts of worship are restricted to what Allah Azza wa Jal ordains, and no one is allowed to introduce something innovative in religious ordinance, because Musa alayhi salam asked Allah to teach him how to glorify and praise him. यानी ये एक बात अब जहन में रखें कि सारी इबादत के रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके अंदर जो है ना कोई चेंजिंग नहीं आ सकती. जो अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है बस उतना ही हमने उसको फॉलो करना है, ओबीडियंटली, इत्तिबा. बट अगर हमने उसमें इब्तिदा कर ली, वी ट्राई टू इनोवेट समथिंग, देन वी आर डिविएटेड. तो innovation is definitely not allowed. This hadith proves the reality of the balance of weighing deeds which will be set in the hereafter. ये hadith जो मीजान का जो कंसेप्ट है उसको भी जस्टिफाई कर रही है. Definitely there is going to be a physiological balance for sure. और फिर उसके अंदर ये जो वजन का जो सिलसिला है वो लाजमी होना है. And lastly, the prophets need to know about the virtue of this testimony, then others need this even more. अगर नबियों के लिए ये जानना इतना जरूरी है तो आप सोचें कि एक आम उम्मती के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कंसेप्ट को समझना कि ये जो शहादा है, ये जो अफर्मेशन और निगेशन है, ये जो कंसेप्ट ऑफ तौहीद है, ये जो कंसेप्ट ऑफ अकीदा इन मैटर्स ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, ये निहायती इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ये वॉलंटरी एक्ट नहीं है. दिस इज एन ऑब्लिगेटरी एक्ट विच फॉर्म्स द बेस ऑफ योर रिलीजन. So a hadith in which the Prophet says, okay. Now, this hadith is also proving that the words La ilaha illallah are the best zikr and the heaviest in weight. So as I said, it's a reminder for everyone that definitely isko hame apne zabanon pe jari rakhna hai. We have reached 11 o'clock, but there is only one point remaining, which is point number 5. तो वो complete करते हैं, then inshallah we'll go to our fiqh chapter. Point number 5 is Tawheed expiates sins. Yes, Farheen. Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, I want to add on that even by saying Alhamdulillah fills the scale, and Subhanallah and Alhamdulillah fills what is between the heavens and the earth. ये हदीस जो हमने पढ़े थे. सही. ऐसे एक्चुअली हम लोग ना इसको कोलेट करेंगे पूरा कलेक्ट करके ना, जो हैवी है ऑन द मिजान एंड एवरीथिंग, जिसके थोड़े से बोलने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे शेयर करने के लिए. अगर किसी के पास रेडीमेड कलेक्शन है, दे कैन फॉरवर्ड इट टू मी एंड देन इंशाल्लाह विल शेयर इट इन द ग्रुप, राइट? और उसकी एडिशनल हदीथ फॉर द इंफॉर्मेशन आल्सो वी कैन ऐड अप. जज़ाकिल्लाह खैर या फरहीन. ओके, तौहीद एक्सपिएट्स सिंस. हदीस बोल दूं, वो थोड़ी छोटी सी है. नहीं, इसकी हम लोग कलेक्ट करेंगे ना जितने भी हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट. ओके ओके. Tawheed expiates sins. Ab, it is reported that Anas radhiyallahu anhu said, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam say, Allah Azza wa Jal said, O son of Adam, were you to come to me with the world full of sins and meet me without associating any partner with me, I would come to you with a similar amount of forgiveness. What a beautiful hadith actually. कि ए इब्ने आदम, अगर तुम मेरे पास आते हो पूरे गुनाह यानी बहुत सारे गुनाह लेकर, लेकिन तुम शिर्क नहीं करते, तो मैं तुम्हारे पास यानी उतनी ही इक्वल या उससे ज्यादा मगफिरत तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, तुम्हारे लिए फॉरगिवनेस लेकर आऊंगा, सिर्फ एक फैक्टर की वजह से. कौन सा है वो फैक्टर? कि आपने शिर्क नहीं किया. So what is the general meaning of this hadith? Nabi sallallahu alaihi wasallam said that Allah Azza wa Jal informs his servant कि अल्लाह ताला कितने रहमान और रहीम है, कितने गफूर और रहीम है, और वो आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि वो आपके सिंस को फॉरगिव करेंगे, नो मैटर कितने ज्यादा हैं वो, लेकिन आप शिर्क से पाक हो. तो आप यानी यू कैन इमेजिन कि आपके गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाएंगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ. There is another ayah which says, indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. अभी शिर्क से नीचे जितने भी टाइप के गुनाह होंगे
ओके उसकी क्वांटिटी अल्लाह आलम, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज प्रॉमिसिंग यू, वो आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि सिवाय शिर्क के Allah will forgive everything else, inshallah. Relevance of this hadith to the subject of Tawheed, that the hadith proves that whoever died without being guilty of any kind of shirk will enter paradise, even if his sins were great enough to fill the earth. अगर पूरी ज़मीन को भरने के तक के गुनाह भी होंगे तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, अगर वो शिर्क नहीं करता, वो मुशरिक नहीं है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंशाल्लाह will forgive him. But not associating anything with me, it implies that believers' sins may be forgiven on the day of judgment, provided that he dies without doing any act of shirk. तो ये हमारे लिए एक गारंटी है, अश्योरेंस है कि हमारे गुनाह, बिकॉज हम इंसान हैं, वी आर नॉट एंजल्स, वी आर नॉट ऑटोमेटेड एंजल्स, हम लोग पल पल गुनाह करते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम गुनाह कर रहे होते हैं, तो और उसकी हमने माफ़ी भी नहीं की होती, हम अपनी इस्लाह भी नहीं कर रहे होते हैं. अब कौन सी स्टेट में बंदा फौत हो रहा है, वी हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया. सुभान अल्लाह, मे अल्लाह फॉरगिव अस, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद अस, मे वी हैव हुस्नुल खातिमा या रब, आमीन या रब. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमारी बचत या हमारी एश्योरेंस टू जन्नत, हमारी एश्योरेंस ऑफ निजात फ्रॉम जहन्नम इज ओनली तौहीद, कि हम अपने आप को शिर्क से पाक रखें. This is a condition that some might think easy and hasten to declare that they are non-mushrik unknowingly. They don't know that the love of money that deviates one from doing his worship duties to Allah Azza wa Jal is a kind of a shirk. इतना सिंपल और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया हुआ. अब हम कह रहे हैं कि कहने के लिए हम सब कह रहे होंगे नहीं हम तो नहीं शिर्क करते, लेकिन आप सोचें आप ऑफिस में हो या यू आर वर्किंग और आप उधर आपकी ज़ोहर की सलाह जो है उसका वक्त हो गया है, आप वो सलाह छोड़ के आप अपने काम पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आपने अननोइंगली अनइंटेंशनली शिर्क कर दिया. आपने किसको Tasmin, your voice was cracking, couldn't hear you very clearly. Really? Is it the case? Is it the case with everyone? No, Api, it's clear for Ma'am, us. for us it is fine. Yeah, for me Aisha. it's clear. Okay. Maybe on my side, but now I can hear you clearly. Only that Alhamdulillah, what you said, alhamdulillah. I couldn't hear you. अल्हम्दुलिल्लाह. सो अभी हमारे पास एग्जाम्पल मिल गया कि अननोइंगली अनइंटेंशनली हमने क्या किया, हमने शिर्क किया. अनौज़ुबिल्लाह. हमने किसको तरजीह दी, हमने हमारे बॉस को, हमारे काम को, पैसे को, रुतबे को तरजीह दी, तो अननोइंगली अनइंटेंशनली हो गया. इसलिए मैं कह रही हूँ कि वंस यू आर कॉन्शियस, आप हर पॉइंट पे विद नॉलेज आप इस चीज का जायजा लें कि कहीं आपसे अननोइंगली शिर्क तो नहीं हो रहा है, एंड बी वेरी श्योर अबाउट इट, और अल्लाह से माफी मांगते रहें. एंड इंशाल्लाह वी विल शेयर दैट दुआ आल्सो, बिकॉज आई बिलीव दुआ इज द वेपन ऑफ मोमिन. यस सबा. मैम, ये जो आपने एग्जांपल दिया कि नमाज का वक्त हो गया और इंसान काम करता रहा, तो मैम ये गुनाह होगा कि ये शिर्क होगा? क्योंकि शिर्क मींस कि अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना. हाँ, तो अब आप देखिए, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इबादा? हमने इसको बहुत हमने इसको बहुत आगे के चैप्टर्स जो हमारे सेशंस हुए थे उसको अंदर बहुत डिटेल में लिया था कि हमने लाइक फॉर एग्जांपल आप किससे डर गए, आप जॉब छोड़कर क्यों नहीं गए 5 मिनट? नहीं, बट मैम गुनाह तो वो है ही ऑफ कोर्स, बट ये शिर्क है कि नहीं? आप देखिए, आप डरे किससे? इट इज अ फॉर्म ऑफ, आप जब डरते हो, आप जब उम्मीद लगाते हो, आप जब किसी और से उस तरीके की इस्तेआना यानी मदद एक्सपेक्ट करते हो, इस तरीके की रिलायंस एक्सपेक्ट करते हो, वो सब आपने क्वालिटीज जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की और अल्लाह का हक है वो आपने किसी और को दे दिया. Are you getting what I'm saying? But I'm still not getting कि ये शिर्क में शामिल होगा कि नहीं. देखो मेरी बात सुनो, आपने अल्लाह इबादत जो ऑफ सलाह इज ऑब्लिगेटरी. यस मैम. ओके, आपका वो उस वक्त पे सलाह आपका अदा करना इज अ मस्ट ऑन यू. आपने उसको छोड़कर अननोइंगली आप जाके अपने काम को तरजीह दे रहे हैं. आपने कहीं ना कहीं जाके वो जो वक्त इबादत का था, जो अल्लाह का हक है आपके ऊपर, आपने वो छोड़ के उसको जानकर आपने डिले कर दिया क्योंकि आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और आपने जाके अपने काम पे इम्पोर्टेंस दी. आपने अपने दिनार और अपने दिरहम्स को इम्पोर्टेंस दी. एक्चुअली लेट मी वर्शिप तो नहीं करी ना दिनार और दिरहम की. in a way or so you have delayed it in a way or so. मैं आपको
Noor and Sabah, let me complete the hadith, please. इसमें ये होता है कि हर गुनाह जो है वो एक तरीके से वो शिर्क में आ जाता है हर गुनाह. Noor, I will come to that. Just let me complete the hadith जो मैं बात कर रही थी. So what did the Prophet say? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, let the slave of dinar and dirham of quantify and khamisa perish as he is pleased if these things are given to him, and if not he is displeased. यानी कि उसने जो है ना तरजीह कहीं ना कहीं जाकर मटीरियलिस्टिक चीज को दी more than the इबादा towards the खालिक. ये उस लिहाज से जा रहा है. यानी सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. वेयर डू वी डू मिस्टेक? अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूंगी ना जनरली कि क्या आपको लगता है कि आप शिर्क करते हो, सारों का जवाब होगा नहीं, हम तो बिल्कुल शिर्क नहीं करते. बट जब मैं अगर ऐसे ऐसे चंद लिविंग एग्जांपल्स लूं ना कि जहां जहां हम डिसोबीडियंस कर रहे हैं, जहां जहां हम इबादत में कटौती कर रहे हैं, जहां जहां हम गुनाह कर रहे हैं, जहां जहां हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कोई वास्ते के तौर से, किसी मदद के तौर से, किसी अपने जाती मफाद के तौर से, तो आप देखेंगे कि हम लोगों का जो तवक्कुल है, हमारा जो रिलेशनशिप विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, वो हमारा कम करके हम इंसानों के पीछे, अल्लाह की मखलूक के पीछे भाग रहे होते हैं. यस महा. Yeah, I was listening to this lecture just a few days ago, and somebody said that even if you you have to, like when you get treated by a doctor, so you should always say Alhamdulillah and not say because of the doctor. This we discussed, Maha. I don't know if you attended. Jazakallah khair for reminding. This we discussed in the last lecture, and I explained this very clearly. कि मैं जब एक दवा खाती हूँ, for example, when I'm taking a medication, the medication itself is not going to give me shifa. The shifa is in the hands of Allah Azza wa Jal. So if I'm saying this कि मैंने ये दवा खाई, या if I've gone to the doctor में जो शिफा मिली, that's a kind of a shirk again. अब आप बोलोगे कि नहीं, ये तो मैंने डॉक्टर की तो इबादत नहीं की, लेकिन मैंने शिफा की सिफत वो दवा को या उस डॉक्टर को दे दी unknowingly. So that is also a kind of a shirk. What I'm saying is कि अल्लाह की सिफत, अल्लाह की पावर, अल्लाह के ऊपर हमारा तवक्कुल, अल्लाह से हमारी मदद की तलब, अल्लाह की तरफ सब डायरेक्ट होना है. All these emotions has to be directed to Allah Azza wa Jal. If unknowingly, unintentionally, I'm giving the credit to the makhluk of Allah Azza wa Jal, unknowingly, unintentionally, anauzubillah, I'm committing a kind of a shirk. And that is what you have to understand. Sorry to interrupt. Sabah and Aisha, one by one. Who's going first? I'm going first, Sabah. Yes, मैम, अगर इंसान जो है जानबूझ के या भूले में मान लीजिए उसने नमाज नहीं पढ़ी और वो ऑफिस के कामों में बिजी रह गया, तो ये जो वो होता है शिर्क होता है, ये तो गुनाह कबीरा होता है, तो दैट मींस उसने गुनाह कबीरा कर दिया. फरीन में मैम, यू हर्ड मी? आवाज चली गई है. हाँ, आवाज शायद मैम चली. आप सब जानते हैं डॉक्टर सफीना के हस्बैंड की डेथ हो गई है? जी जी, सब जानते हैं. दैट इज व्हाट, मुझे फोन कॉल्स आ रही है बार बार. आई एम ट्राइंग टू continue with the lecture, but subhanallah, I'm getting phone calls. Inshallah, we'll manage that. No worries, inshallah. Okay, Sabah, continue what you are saying, sweetie. I was saying कि अगर इंसान जो है जानबूझ के नमाज छोड़ दिया ऑफिस के काम में, या गलती से नमाज छोड़ दिया ऑफिस के काम में, तो जो शिर्क है दैट इज गुनाह कबीरा. तो इसका मतलब कि अगर हमने नमाज छोड़ दी जान के या अनजाने में, शिर्क इज नॉट गुनाह कबीरा. इसकी ना जब हम अक़साम पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगी. गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा वो अलग हैं, शिर्क कबीरा, शिर्क असगर, शिर्क खफी वो अलग हैं. we have lot of categories in there, Sabah. Okay, continue. अच्छा, okay ma'am, okay. Continue. You're done. I'm sorry, but I want to just tell Sabah कि किसी के डर से, अगर आपके बॉस के डर से आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो that is shirk. That is what I'm telling her, कि आपने अपने बॉस के फियर से, अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी की वजह से आपने दिनार दिरहम को तरजीह दी है. So in that perception it is going towards the shirk. इसमें इबादत का क्या लेना देना नहीं है. You're not doing the ibadah of any creation. You are still doing the ibadah of Allah Azza wa Jal. एक और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया घर लिया है, आपको आपके यानी इट्स अ कल्चरल थिंग कि आपको जो है ना कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो यहाँ
पर जो बलाएं हैं या जिन जिनात हैं उससे आपको निजात मिलेगी, आपने वो किया, दैट्स अ काइंड ऑफ अ शिर्क। अगेन आपको किससे फियर हो गया? आपको अल्लाह की मखलूक से फियर हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ अ शिर्क। दूसरा मैं आपको, और जो हमने भी दवाइयों का सिलसिला डिस्कस किया कि अल्लाह ताला की जो सिफत है वो किसी मखलूक को देना, उसकी तरफ डायरेक्ट करना इज अ काइंड ऑफ अ शिर्क। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें लगती हैं, लेकिन ये जाके इसका जो रुख बनता है वो कितना भयानक बनता है। इसी वजह से इसकी नॉलेज, अगेन आई से द नॉलेज प्रिसीड्स योर एक्शन। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमको हर एक चीज का जो क्रेडिट है, वट एवर अल्लाह की जो सिफत है, शिफा वाली सिफत, बचाने वाली सिफत, हमारे को ग्रेस करने वाली सिफत, रिस्क पहुंचाने वाली सिफत, ये सब सिफत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की है, वो अल्लाह को ही हमें पूरा ड्यू क्रेडिट देना है। वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव द क्रेडिट टू एनीबडी एल्स। कोई भी इंसानी मखलूक को हम क्रेडिट नहीं दे सकते, उनको, उनसे हमको फियर नहीं हो सकता। अब ये नेचुरल फियर, देयर इज अ डिस्कशन ऑन दैट आल्सो, लाइक इफ देयर इज अ नेचुरल फियर ऑफ एन एनिमल, या इफ यू आर आस्किंग somebody for an help, will that be allowed or not allowed, उसकी conditions हैं, we have to understand the conditions। इंशाल्लाह आगे हम उसके और डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझ लेना है कि हमें हर एक एक्शन में, हमारे हर एक वर्ड्स में, हमारे हर एक डीड्स में हमको प्यूरिफाई करना है, किसी भी तरीके का शिर्क ना आए। सो फिलहाल के लिए इतना काफी है कि ऑल आवर इबादा and everything, all our blessings, we are giving due credit only to Allah Azza wa Jal. Right, Sabah? Just a question. जैसे if Yes, you are ma'am. in the office and काम में busy हो, अजान हो गई है, I mean you still have time for namaz. So can you like finish off that work and then then आयशा, pray? Is it मैं okay? इसके अंदर ना एक ही पॉइंट बोलूंगी। आई हैव बीन आल्सो वर्किंग थ्रू आउट माय लाइफ, जस्ट यानी फ्यू इयर्स आई हैव बीन ऑफ वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हम करना चाहें हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वी हैव अ हदीथ रेफरेंस आल्सो। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल होता है घर में, तो शी सेड दैट ही इज इन्वॉल्व्ड इन द हाउस वर्क, ही इज हेल्पिंग अस, ही इज एंगेज्ड विद द फैमिली मेंबर्स। द मोमेंट ही हियर्स द अज़ान, he becomes a stranger to us, he drops what he has in his hand and he proceeds for the salah. So हमारे लिए each one of us know it very well and Allah Azza wa Jal knows it very well। बात तो हमें जो है ना अपनी कोशिश यही करनी है कि पहले औकात में सलाह हम अदा कर लें, बिकॉज मौत का भरोसा नहीं है, एंड सबसे पहली पनिशमेंट व्हाट वी आर मिसिंग द सलाह उसकी होगी। तो अनाउज़ुबिल्लाह वी हैव टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल दैट। कहने का मफहूम ये है, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू अल्लाह अज़्ज़ा व जल, बिकॉज अल्लाह इज राज़िक, अल्लाह इज मालिक, अल्लाह इज खालिक, ही इज द वन हु डिजर्व्स टू बी गिवन प्रायोरिटी। सो अब ये छोटे छोटे हम एग्जाम्पल अपनी लाइफ में ले, मैं क्लास में थी, मैं लेक्चर में थी, मेरा लेक्चर खत्म हुआ, फिर मैं गई, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन यू एंड इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह अज़्ज़ा व जल। आई फ्रॉम माई साइड कैन ओनली से दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज अल्लाह, दैट्स इट। राइट? Yes, बेशक। So the merits of Tawheed and the great reward, हम ये पांचों पॉइंट्स हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं, और अगर नहीं समझे हैं तो वी कैन अगेन डिस्कस अबाउट इट इंशाल्लाह। जब तक कि ये हमारे दिमाग और हमारे रूह तक ड्रिल ना हो जाए, वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस, कि तौहीद जो है हमें ग्रांट करती है सेफ्टी एंड गाइडेंस इन दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर के लिए हमारी आसानी है। इट्स अ की टू द पैराडाइज, इट सेव्स अस फ्रॉम द हेल फायर, और मीज़ान पे बहुत वजनी है और हमारे गुनाहों को भी झाड़ देती है। तो अगर मैं आपसे रफली 5 पॉइंट्स अगर पूछूं कि वर्च्यूज ऑफ तौहीद क्या है, तौहीद के फायदे क्या हैं, देन यू शुड बी एबल टू टेल मी दिस। सेफ्टी एंड गाइडेंस, की टू पैराडाइज, सेव फ्रॉम हेलफायर, मोस्ट हेवी इन द स्केल, एंड तौहीद एक्सपिएट्स सिन। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी मैम, यस ये जो आपने तौहीद एक्सपायर्ड सिंस की 2 हदीस बताई थी, इसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इंशाअल्लाह, इन केस यू कैन। इंशाअल्लाह। थैंक यू। लेट मी राइट दैट। हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह करती हूँ मैं। कोई और क्वेश्चन है? Are we clear? This concept is clear? Alhamdulillah for that. Let me stop the recording and we'll start for the fiqh.